Hi, welcome back students, and today we'll see about standard 10 second lecture, that is types of chemical reactions. Previous lecture we have seen about chemical reactions and how to balance chemical reactions, that we have seen in the easiest method I have taught you. So you can have a look at my lecture, the previous lecture. अगर आपको देखना है बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, बहुत ही ईजीएस्ट ट्रिक से मैंने सिखाया है, तो आप देख सकते हैं मेरा प्रीवियस लेक्चर. आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ओके, so we know that a chemical reaction is formed by breaking and making of bonds, okay, to form a new substance. Okay, so and what are the categories in which this chemical reaction can be categorized is as the first type of chemical reaction is combination reaction. So what is a combination reaction? The name itself suggests that when two or more substances combine to form a new substance, then it is called as what? Combination reaction. Okay, say for example, we are taking a simplest example, carbon dioxide. We are taking formation of carbon dioxide. That is, carbon on combining with oxygen gives you what? Carbon dioxide. We all know that C plus O2 gives CO2. So here what is happening, as you can see on the screen, there is a formation of bond between carbon and oxygen. Okay, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसकी वजह से CO2 फॉर्म होता है, जो एक नया सब्सटेंस है. तो यहाँ पे क्योंकि दो सब्सटेंस कौन से हैं हमारे, C एंड O2, दे आर कंबाइनिंग टू गिव यू CO2, so that is called as what? Combination reaction. Understood? One more example we are taking, like for example hydrogen and oxygen on combining, okay, they give water. ये हमें पता है, पहले भी हम लोअर स्टैंडर्ड्स में देख चुके हैं. उसका एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दैट इज 2H2 प्लस O2 गिव्स यू 2H2O. ओके, सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन हो रहे हैं एंड दे आर गिविंग यू वाटर. So two substances are combining to give you a new substance, that is water over here. So that is called as what? Combination reaction. इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं जो डे टू डे लाइफ में भी हम देखते हैं, दैट इज़ वॉट? डाइजेशन ऑफ फूड. ओके, सो वॉट इज़ हैपनिंग व्हेन वी आर ईटिंग राइस देन पोटैटोज एंड ऑल. रोटी जब हम खाते हैं तो क्या होता है, वी आर कंज्यूमिंग कार्बोहाइड्रेट्स, एंड व्हाट इज हैपनिंग, कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलेस्ट शुगर्स. वी ऑल नो दैट इज ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट्स टूट जाते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज. एंड दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, they give you what? Carbon dioxide, water and some amount of energy is released. तो अगर आपको लग रहा है कि जो हम एनर्जी हमें मिलती है दिन भर, ठीक है, जो काम करने की जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो जो भी हम खाना खाते हैं, आफ्टर डाइजेस्टिंग, आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ such substances, what is happening, as you can see on the screen, reaction happens, okay, and carbon dioxide and water molecules are formed. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल कर देते हैं, वाटर रिमेन्स इन आवर बॉडी एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. वो ही एनर्जी है जो हमें वर्क करने के लिए डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में काम में आती है. तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल था डे टू डे लाइफ का, कॉमन जो हम रोज़ देखते हैं, जो हमारी बॉडी में ही होता है बट हमें पता नहीं है. दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Okay, so next we are going to see about the next reaction. Let's see about the next one. So now we will see about decomposition reaction. So the name itself only suggests that it is decomposing. That means ये break हो रहा है. ये exactly opposite है जो previous reaction अभी हमने देखा, that is combination reaction. Combination reaction में combine होकर new substance बन रहा था. Decomposition reaction में जो अभी हम देखेंगे उसमें एक substance break हो जाएगा, वो टूट जाएगा और आपको substances मिलेंगे. तो सबसे simplest example जो हम देखने वाले हैं, that is about calcium carbonate. Now calcium carbonate में क्या होता है, when you are heating this compound, okay, calcium carbonate, what is happening, you will get what? Calcium oxide and carbon dioxide. Okay, CaCO3 gives you CaO plus CO2, as you can see on the screen. Okay, so what is happening, एक compound है CaCO3 यहाँ पे, वो टूट गया है और आपको डिकम्पोज होके नए सब्सटेंसेस दे रहा है, दैट इज CaO and CO2. तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. दैट मीन्स डीकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल, ब्रेकिंग ऑफ द कंपाउंड. एक और एग्जाम्पल देखते हैं एक एक्टिविटी के फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टेकिंग सम अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आई हैव गिवन अ पिक्चर अबाउट इट. So what is happening in this china dish, I have taken what? Almost 2 to 3 grams of silver chloride, and I'm keeping this china dish in sunlight for
सम टाइम. ओके, सो व्हाट इज़ हैपनिंग, थोड़ी देर के लिए सनलाइट में छोड़ने की वजह से ये कंपाउंड डिकम्पोज होना शुरू कर देता है. दैट इज़, ये जो वाइट कलर का जो कंपाउंड है सिल्वर क्लोराइड, वो चेंज हो जाएगा इनटू ग्रे कलर, जो है किसका, सिल्वर का. सो एक बैलेंस रिएक्शन आप इसका स्क्रीन पे देख सकते हैं, दैट हाउ इट इज़ गिविंग यू सिल्वर एंड क्लोरीन ऑन डिकम्पोजिंग, एज यू कैन सी. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड कंपाउंड टूट के आपको क्या दे रहा है, सिल्वर एंड क्लोरीन. सेम हैपन्स इन द केस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो. तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने क्या देखा कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ सनलाइट, ओके, बिकॉज ऑफ लाइट, ओके, एंड बिकॉज ऑफ एनी कैटलिस्ट, दे आर ब्रेकिंग डाउन इनटू new substances. That is why it is called decomposition reaction. Okay, now we are taking the example of displacement reaction. So displacement reaction का मतलब क्या होता है, displace करना मतलब किसी को जगह से हटाना या हट जाना. Okay, that is displacement reaction. तो यहाँ पे हम एक एक्टिविटी देखते हैं इसको समझने के लिए. दैट इज़, हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं विच इज़ ब्लू इन कलर. इन अ बीकर आई एम टेकिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. ओके, और इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, एक क्लीन की हुई आयरन नेल को डिप करती हूँ फॉर अबाउट 20 मिनट्स. ओके, आयरन नेल को मैंने डिप कर दिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में. एंड आफ्टर 20 मिनट्स जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलता है कि कलर जो है आयरन नेल का और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, दोनों का कलर चेंज हो चुका है. ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू था, उसका कलर कैसा हो गया है, फेड हो गया है. इसकी जो इंटेंसिटी है कलर की वो कम हो गई है. अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये इस रिएक्शन की वजह से हो रहा है जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. दैट इज़, जब आयन, ओके, आयन नेल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ कंबाइन होता है इन अ बीकर, व्हाट इज़ हैपनिंग, आयन जो है दैट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन कॉपर कंपैरिजन टू कॉपर. तो वो क्या करता है, आयन जो है वो कॉपर को अपनी जगह से हटा देता है. वो कॉपर को बोलता है कि तू हट यहाँ से, क्योंकि तू कैसा है, वीक है, और मैं कैसा हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ. ठीक है, तो वो क्या करेगा, कॉपर की जो प्लेस है उसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा. सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि उसने क्या किया, वीकर कॉपर मेटल को अपनी जगह से हटा दिया है, खुद जाके कॉपर की जगह पे बैठ गया है. तो क्या फॉर्म होगा अभी रिएक्शन में, ओके, दैट इज़ व्हाट, FeSO4 प्लस कॉपर प्लस Cu, ये अलग हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने रिएक्शन में क्या देखा कि एक स्ट्रॉन्गर मेटल एक वीकर मेटल को डिस्प्लेस करा है अपनी जगह से. सो डिस्प्लेस करने की वजह से इस रिएक्शन का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. ओके, तो चलिए बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की. तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा ही है जैसे हमने पहले भी देखा, डिस्प्लेस करना. तो यहाँ पे जो है डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है, ओके, उसके बारे में हम देखते हैं. तो एक एग्जांपल लेते हैं. In one test tube, what you are taking sodium sulfate solution, okay, 3 ml of around sodium sulfate solution. और इसके अंदर हम क्या करते हैं, we are adding barium chloride solution that is also of 3 ml. दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करने की वजह से, अगर आपने नोट किया होगा, दोनों सॉल्यूशंस मिक्स करने के बाद इन अ टेस्ट ट्यूब यू विल सी इनसोल्यूबल थिंग. ओके, एक चीज़ है, कंपाउंड है जो इनसोल्यूबल है वाटर में, वो फॉर्म हो रहा है. ओके, so that is what you can see on the screen, a balanced reaction of sodium sulfate plus barium chloride solution giving you barium sulfate. तो barium sulfate ही क्या है यहाँ पे, that is the insoluble thing जो डिजॉल्व नहीं हो रही है, एंड सोडियम क्लोराइड जो सोल्यूशन में रहेगा. तो बेरियम सल्फेट सोल्यूशन यहाँ पे है जो इनसोल्यूबल है, जिसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट्स. तो इस रिएक्शन को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहा है. जो भी इनसोल्यूबल चीज़ होती है जो डिजॉल्व नहीं होती है फर्दर, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट्स. तो रिएक्शन में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम जो है वो डिस्प्लेस होके बेरियम के प्लेस पे जा रहा है, और बेरियम जो है वो डिस्प्लेस होके सोडियम के प्लेस पे जा रहा है. That means for these two atoms, they are displacing one another's place, each other's place. Okay, खुद की place change कर रहे हैं. They are giving you a new compounds, as we have seen, barium sulfate and sodium chloride. That is why it is called as what, double displacement reaction. क्योंकि both the atoms, what they are doing, they are exchanging the places. Okay, that is why it is called as what, double displacement reaction. Hope you have understood.
नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। इसके बारे में आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। मैंने पढ़ा हो स्टैंडर्ड 11th एंड 12th के लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक सिंपल डेफिनेशन में उसको फॉर्म में बेसिक उसका देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा कोई भी कॉपर वेसल्स अगर आपके घर में है तो कॉपर की बॉटल्स ले लीजिए आप। तो कुछ टाइम के बाद कॉपर का जो सरफेस है, ओके, जो ब्राउन है वो धीरे धीरे ब्लैक होना शुरू कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि ये कॉपर जब आप उसको बाहर छोड़ देते हो, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड गिव्स यू व्हाट? कॉपर ऑक्साइड। ओके, और कॉपर ऑक्साइड ही है जिसकी वजह से उसका सरफेस क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। अगर ये कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हीट करते हैं, ओके, तो क्या होता है? हीट करने के बाद उसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक रिएक्शन होगा बिटवीन कॉपर ऑक्साइड, हीटेड कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, और क्या रिलीज होगा? कॉपर। तो जो कॉपर हमारा खो चुका था फर्स्ट रिएक्शन में, ओके, जो चला गया था वो कॉपर हमें वापस मिल जाएगा, दैट विल बी गेन बैक एंड H2O इज फॉर्म। तो अगर आपने नोटिस किया होगा फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है? फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो कॉपर के अंदर ऐड हो रहा है, कॉपर जो है इसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जो रिएक्शन है उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दैट मीन्स एक ऐसा रिएक्शन, ओके, जिसमें ऑक्सीजन गेन होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और कॉपर यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि कॉपर यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, और सेकेंड रिएक्शन में जो हमने देखी थी, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, इट गिव्स यू व्हाट? कॉपर अगेन बैक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ये रिएक्शन कैसी हुई? रिडक्शन रिएक्शन। दैट मीन्स रिडक्शन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन वो हुई। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे कॉपर रिड्यूस हो रहा है इस केस में। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, डोनेट कर रहा है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिड्यूस्ड। अंडरस्टूड? समझ में आई अब बात? जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन होगा उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन लूज हो जाएगा उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट केस जो है वो ऑक्सीडेशन का है, सेकेंड केस जो है वो रिडक्शन का है। सेकेंड केस को हम इस तरह से डिटेल में भी समझ सकते हैं, CuO प्लस H2 गिव्स कॉपर प्लस वाटर। अब रिएक्शन में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्योंकि Cu में कन्वर्ट हो रहा है, ओके, दैट मीन्स वो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो फिगर में आप देख लीजिए रिडक्शन मैंने शो किया है फ्रॉम CuO टू Cu। और कॉन्ट्ररी यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्या किया? ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया, सो दैट इज ऑक्सीडाइज्ड। और कॉपर ने क्योंकि ऑक्सीजन को लूज किया है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिड्यूस्ड। कॉपर इज रिड्यूस्ड। दोनों ही रिएक्शंस जिस रिएक्शन में होते हैं, जैसे यहाँ पे हो रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उस रिएक्शन को उसे हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके बारे में डिटेल्ड में आप फर्दर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे बाकी सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं, मैंने 11th स्टैंडर्ड के 12th स्टैंडर्ड के वीडियोस डाले हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ आप उसको विज़िट कीजिए, आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो। अगर मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँगी। ठीक है, टिल देन बाय।